In this exercise, we have integrate of sin की power nx cos की power nx dx. Sin की power nx dx का इंटीग्रेशन लाइक दिस टर्म cos की power nx dx का इंटीग्रेशन या tan की power nx dx का इंटीग्रेशन. इस टाइप का इंटीग्रेशन हम यहाँ सीखेंगे. इस टाइप का इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहली बात आती है कि हमें ये देखना है कि कौन सी टर्म को पुट करके हमने सोल्व करना है. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है sin की पावर 5x dx की इंटीग्रेशन. अब इस 5 पावर को मैं ब्रेकअप करता हूं sin x एक पावर और sin की 4x ये 4 पावर, टोटली कितनी है 5. अब इस 4 पावर को हम फिर ब्रेकअप करते हैं. sin स्क्वायर x को लिखते हैं sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट मींस sin x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर dx. अब साइन स्क्वेयर एक्स इसके इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स उसका होल स्क्वेयर इंटू साइन एक्स dx. नाउ वी पुट कोस एक्स. दिस कोस एक्स इज इक्वल टू t. नाउ डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt. So now we take minus outside and sin x or dx change into dt and this becomes 1 minus t square का whole square. This is your property a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab into dt. Now we integrate of these three terms separately. One integration t की 4 t की 5 by 5 minus 2 t square का इंटीग्रेशन करेंगे minus 2 बाहर t की 3 by 3 plus c as a constant term. Now we put the value of a t. Here the value of t is cos x. So then this becomes cos x cos की 5 x by 5 minus 2 upon 3 cos की power 3 x plus c. This is your first part. In second part cos की power 7x dx का integrations. Now here the power is odd और even के अंदर आती है पॉजिटिव odd इंटीजर है तो cos यहाँ odd इंटीजर है तो हम यहाँ sin को पुट करते हैं. अगर sin है तो cos पुट किया जाता है. तो पहले हम इसको ब्रेकअप करते हैं. 7 पावर को एक तो होगा cos x 1 पावर और cos की पावर 6x dx. टोटली पावर कितनी होगी 7. Now this will be written as cos x cos square x की whole power 3 dx. Now this cos square x is equal to 1 minus sin square x for whole power 3 cos x dx. Now we put sin x is equal to t. अगर cos है तो sin को पुट करेंगे. sin है तो हमने यहाँ cos पुट किया था, अल्टरनेट है ये. तो cos को sin को t पुट किया, sin का डेरिवेटिव होगा cos x dx is equal to dt. तो now this forms cos x dx change to dt then dt and this becomes 1 minus t square की whole power 3. Now we open these a minus b whole cube. We get a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So we get 1 minus t6 minus 3t square plus 3t की 4 dt. Now integrate of these all terms separately. One integration t की power 6 का integration t की 7 upon 7. 3t square we get t की 3 by 3 3 cancel to 3 and 3t की 4 is 3 by 5 3 की 5 plus c. Now put the value of a t. Here the value of t is sin x. This is sin x. Now 7 power sin 7x sin की whole power 7 by 7 sin 3 upon 5 this. Now we write these in term of order sin x minus sin की whole cube plus 3 upon 5 sin whole power 5x और minus sin 7x by 7 plus c. This is your part number second. In third part it is given that tan x की whole power 5. So now in this part we have used the property of sin upon cos x and then solve sin 5x by cos 5x. Then we put one value of sin 5x by cos 5x by these sin 5x by these. Now we break up the sin x in cos x term and then put the value of cos x. Do yourself. In question number second, it is given that evaluate the following
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। हमने पहले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इन टर्मों का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इनको ब्रेकअप करेंगे साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, यानी दोनों पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कोस एक्स की होल पावर 2 डीएक्स। अब मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिटी के अंदर ले जाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। जो 2 मल्टीप्लाई किया है वो बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये 1/2 जो बाहर है निकल के आएगा कितना बन जाएगा 1/4। तो नाउ दिस इज योर प्रॉपर्टी 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो दिस बिकेम साइन 2x और उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x dx। अब साइन स्क्वायर 2x की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर 2x की प्रॉपर्टी क्या होती है 1 माइनस कोस 4x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। नाउ वी टेक 1/2 कॉमन, तो वी गेट 1/8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, तो दिस बिकेम्स 1/8x माइनस sin 4x बाई 4 प्लस c। इन सेकंड पार्ट sin की पावर 4x cos की 3x dx इंटीग्रेशंस। नाउ वी ब्रेक अप दिस 3 पावर, वी राइट इज cos square x into cos x। नाउ cos square x इस प्रकार के फंक्शंस के अंदर एक बात याद रखनी, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट दोनों सेम है। हमने यहां इसकी जो पावर दी हुई है कोस को ब्रेकअप कर लिया साइन के अंदर, इसमें भी कोस को साइन के अंदर ब्रेकअप किया जा सकता है। कोई साइन को ब्रेकअप करना चाहे तो साइन को भी ब्रेकअप कर सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। अभी कोस को ही कंपल्सेशन है यहाँ, लेकिन यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर ओड है। देखिए, तो कोशिश करें इस प्रकार के ओड और इवन के अंदर आए तो आप इवन वाले को छोड़ के ओड वाले को ब्रेकअप करेंगे पावर के अंदर और फिर पुटअप किया जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक कोस अलग बचा हुआ है। अब हम इस साइन एक्स को टी पुट कर लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स dx इज इक्वल टू टी, ये फंक्शन चेंज हो गया dt के अंदर और ये बन गया t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की 4 dt, t की 6 dt, इंटीग्रेशन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, t की 4 t की 5/5 माइनस t की 6 का t की 7/7 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ ए t, हियर द वैल्यू ऑफ t इज sin x, तो sin 5x/5 माइनस sin की होल पावर 7x/7 प्लस c। इन थर्ड पार्ट ऑफ दिस sin की 5 cos की 3, देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर सेकंड के अंदर हमने तीनों पार्ट किए, तीनों के अंदर अलग अलग रिजल्ट आए। जब दोनों की पावर इवन है, यहां हो सकता है दोनों की पावर ओड भी हो जाए, तो भी इसी प्रकार रूल के अंदर हम उसको लेके आते हैं। यहां देखिए, लेकिन इक्वल, इसमें इक्वल थी, इसमें इवन ज्यादा है, ओड कम हो गई, यानी 4 और 3 ब्रेकअप कर लिया। यहां दोनों इवन ओड दी हुई है, तो साइन 5x एज इट इज कोस 3 को ब्रेकअप कर लिया हमने कोस स्क्वायर x इंटू कोस x। अब इसके बाद कोस स्क्वायर x को ब्रेकअप करेंगे लाइक दिस, इसकी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर x कोस x dx एज इट इज। साइन को पुट करेंगे x, साइन का डेरिवेटिव ये आ गया, दिस बिकेम t की 5 1 माइनस t स्क्वायर dt, मल्टीप्लाई की t की 5 माइनस t की 7 dt, इंटीग्रेशन करेंगे t की 6/6 माइनस t की 8/8 प्लस c। Now put the value of these t, sin की पावर 6/6 माइनस sin की पावर 8x/8 प्लस c। This is your 2 questions of exercise 9.3. In question number 30 it is given that sin square x by cos की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। ये थर्ड और फोर्थ पार्ट भी एक विशेष टाइप आ गई इसके इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, हम इसको उसकी 4 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कोस वी गेट tan स्क्वायर एक्स एंड दिस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स। नाउ वी पुट tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव हो गया secant स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, देन दिस चेंज टू dt एंड दिस बिकेम्स t स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस t 3/3 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, tan t cube x by 3।
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस साइन स्क्वायर एक्स बाई में कोस की 4x dx। तो यहाँ आप इस कोस की 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सोल्व इट। दिस इज योर पार्ट नंबर थर्ड, dx बाई में साइन x इंटू कोस की पावर 3x इट इज गिवन। तो हमने यहाँ इस साइन को tan के अंदर कन्वर्ट किया, कोस x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ बन गया tan x और ये बन गया कोस की 4। तो tan x बाई सीकेंड की पावर 4। अब tan सीकेंड की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, और एक सीकेंड को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। tan को t पुट किया, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। दिस बिकेम्स 1 प्लस t स्क्वायर बाई t dt, 1 by t, t square by t, 1 by t log t, t square by t means 1t, t का इंटीग्रेशन किया t square by 2 plus c, put the value of t log tan x plus t tan square x by 2 plus c. In third part it is given that question number 4 first part given that tan की whole power 4, इसको हम लिख सकते हैं tan square x का होल स्क्वायर। अब tan स्क्वायर x को हमने ब्रेकअप कर दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम इन सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने सीकेंड की 4 का इंटीग्रेशन किया था लाइक दिस। तो सीकेंड की 4 को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड, एक सीकेंड को ब्रेकअप कर लेंगे 1 प्लस tan x, और tan x को t पुट कर लिया, tan का डेरिवेटिव वही सीकेंड स्क्वायर x dx dt के अंदर, और 1 प्लस t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t प्लस t की 3/3। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x सीकेंड स्क्वायर x का tan x ये एज इट इज, और पुट द वैल्यू ऑफ t देन सोल्व इट। tan x tan की पावर 3x by 3 प्लस x माइनस 2 tan x। अब यहाँ जब हमने इसको सोल्व किया तो x tan की पावर 3x by 3, this is tan x and this is minus 2 tan x, we get minus tan x plus c। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कहता है सीकेंड की होल पावर 4 dx। अभी देखिए इस क्वेश्चंस के इस पार्ट के अंदर आपने किसको सोल्व किया, सीकेंड की पावर 4 को। तो सीकेंड की पावर 4 को ऐसे ही आपने सोल्व करना है, यहां तक इसका इंटीग्रेशन बना हुआ है, ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट जो पार्ट है कोसिकेंड की पावर 6x dx का इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंड को हम लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर और उसकी होल पावर 3, या 3 को लिख के होल स्क्वायर कर ले, तब उसमें गड़बड़ क्या बनेगी, हमारे पास 3 की आइडेंटिटी नहीं है लेकिन 2 की तो आइडेंटिटी है। कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है। अब कोसिकेंड स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर x का होल क्यूब। अब इस होल क्यूब को ओपन करेंगे और सभी पार्टों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह ही डू योर सेल्फ।